the unit 1. Okay. Yesterday we have discussed, we have seen the syllabus, entire syllabus, 5 units. Today we'll start with unit 1. So, as we have seen the first unit, it starts with the definition and architecture of 8085 and 8086. So, first we'll discuss few lectures on 8085 and then we'll go for 8086. So, in your group, I think yesterday Pankaj has shared one PPT. Have you seen, all of you? आपने देखा होगा ना, एक पीपीटी कल शेयर किया है, पंकज ने डाउनलोड करके शेयर किया, जो मैंने बताया था गोयंकर का, रमेश गोयंकर, उसी का पीपीटी है, बहुत अच्छा पीपीटी है वो, यू कैन रेफर दैट आल्सो, राइट? लेट अस स्टार्ट the same PPT I'm going to use here. Are you able to see the PPT? आप देख पा रहे हैं PPT? Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. So, as I told you yesterday, there are 3 terms, very similar terms are there. Microcomputer, microprocessor and microcontroller. These 3 are very similar terms. Try to understand the difference. Okay. Easily you can understand it. First, let us take microcomputer. So either we say microcomputer or we say computer. Both are same. Why it is called micro, we'll see later. Why the term came into picture, micro, we'll see that. Okay. So microcomputer is nothing but it includes what? CPU, memory, and I/O devices. So mainly these components are there in our computer system. Yes or no? This is a very basic concept. CPU, memory, and I/O devices. And some more things are there, but these are the main components of the computer system. So if it is a microcomputer, then we can find CPU, which includes ALU and CU. CPU includes, what is that? Central processing unit means the important part is what? ALU and CU. Yes or no? Getting a point? Hello? चंद्रेश? Yes, sir. आप लोग एक्नॉलेज करें, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन करता हूं यस नो तो आप लोग एक्नॉलेज करें प्लीज, ठीक है? So that is nothing but the microcomputer. It means what it says, CPU includes mainly ALU and CU, arithmetic logic unit and control unit. ये तो हमें पता ही है. That is the main part of CPU. तो CPU तो रहेगा, जो आपने बॉक्स देखा है अपने सिस्टम में, that is CPU, right? Which includes many other things, many other components, but we'll talk mainly the CPU. With that CPU, the memory is connected. Just keep in mind that memory is not on the same chip. जो CPU होता है अपना, जो प्रोसेसर होता है, उससे अलग होता है क्या? मेमोरी. ये देखा होगा आपने, चाहे रैम हो चाहे रोम हो, दोनों क्या होता है कि आपको अलग से कनेक्ट होता है. Yes or no? Getting a point? Yes, sir. Yes, sir. So, और आईओ डिवाइस जो भी होता है, आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, जो भी डिवाइसेस होता है वो एक्सटर्नली कनेक्ट होता है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट द माइक्रो कंप्यूटर. A microcomputer is nothing but which includes central processing units, and external to CPU we are going to find memory, IO devices, and many more components. That becomes microcomputer. ठीक है? Now come to the next term, microprocessor. So what is in the silicon chip, which includes ALU, register, and control unit. So processor is nothing but CPU. If we consider microcomputer, then in that microcomputer we can microprocessor. We can have microprocessor, that is called CPU, and separately it is connected, that is memory and IO device. So microprocessor is nothing but silicon chip, which includes ALU, register circuit, and control unit on the same chip. एक प्रोसेसर है, एक चिप है
जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, जिसमें क्या क्या होता है आपको, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर्स होता है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर. Why it is called silicon, I'll tell you. First let me complete these three terms. Microcontroller, the third term is called microcontroller. What it is? So जो आपने देखा इस माइक्रो कंप्यूटर में, इसमें क्या देखा आपने कि इसमें सीपीयू तो होता ही है, साथ में क्या होता है कि मेमोरी, आईओ डिवाइसेज, अदर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, कनेक्ट होता है, समझे बात को. लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स होता है माइक्रो कंप्यूटर में, वो कंपोनेंट्स कनेक्ट नहीं होके वो सेम चिप में होता है, सेम बोर्ड में होता है. इट मींस जो प्रोसेसर का बोर्ड है उसी बोर्ड में क्या क्या होता है, तुम्हारा मेमोरी भी होता है, आईओ डिवाइस भी होता है. इट्स क्लियर. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन चिप कंसेप्ट एंड ऑफ चिप कंसेप्ट. आप इसको थोड़ा याद रखें जरा, आप जरा इसको ध्यान सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन चिप एंड ऑफ चिप. समझे बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन चिप एंड ऑफ चिप. ऑफ चिप मीन्स क्या हुआ, हमारा माइक्रो कंप्यूटर हुआ, जिसमें क्या होगा, सीपीयू तो होगा ही, साथ में उस सीपीयू के साथ क्या क्या कनेक्ट होगा, मेमोरी भी कनेक्ट होगा, आईओ डिवाइस भी कनेक्ट होगा और सम अदर कंपोनेंट्स कनेक्ट होगा, जो जो जरूरत है वो कनेक्ट करेंगे हम वायर के थ्रू. लेकिन अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि मेमोरी, आईओ डिवाइस, टाइमर और भी कंपोनेंट्स वो क्या होता है उसी चिप में होता है, प्रोसेसर के ही चिप में इनबिल्ट होता है, वो अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं होता है. इसलिए इसको हम बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को बोलते हैं ऑन चिप डिवाइस, ऑन चिप प्रोसेसर. और माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं ऑफ चिप. ऑफ चिप मींस जो चिप से बाहर भी कुछ चीज कनेक्टेड है, जैसे कि मेमोरी, आईओ डिवाइस चिप से बाहर है और वो कनेक्ट है वायर्ड के थ्रू. So it is called on chip and off chip concept. तो आप समझ गए तीनों टर्म, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो जस्ट कीप इन माइंड ऑन चिप एंड ऑफ चिप, ये दोनों टर्म आप लिख ले. ऑन चिप मींस माइक्रो कंट्रोलर, जो कि सेम चिप में सेम बोर्ड पर क्या होगा, सीपीयू भी होगा, आईओ डिवाइस भी होगा, मेमोरी भी होगा और अदर कंपोनेंट्स भी होगा, तो उसको बोलते हैं हम ऑन चिप, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर. ऑफ चिप मींस माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें क्या होगा, सीपीयू तो रहेगा ही, उस सीपीयू के साथ हम जोड़ेंगे, मेमोरी को जोड़ेंगे वायर के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू, आईओ डिवाइस को जोड़ेंगे और अदर कंपोनेंट्स को भी जोड़ेंगे, दैट इज ऑफ चिप माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, ओके देन. नाउ द टर्म कम्स, व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो, व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो. पहले हम माइक्रो समझे अच्छे से. इन 1960s क्या था कि एक माइक्रो प्रोसेसर जितने सारे कंपोनेंट्स था वो डिस्क्रीट मैनर में था, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हुआ करता था, मींस डिटैच्ड हुआ करता था. वो सारे कंपोनेंट को जोड़ के सीपीयू बना जाता था. तो जिससे क्या जोड़ने के बाद क्या होता था, उसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाता था. आज के डेट में आप देखेंगे, आप अपना कंप्यूटर खोल के देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको प्रोसेसर जो फैन के नीचे रहता है, स्क्वायर शेप में, बहुत ही छोटा होता है. ठीक है ना, आपको कितना होगा, आपको जब 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर होगा मैक्सिमम, वही साइज होगा. ठीक है ना, उससे भी छोटा आता है आजकल प्रोसेसर, इतना छोटा हो गया. लेकिन जब हम 1960 का बात करेंगे, वो 1960s में क्या था कि वो डिस्क्रीट मैनर में कंपोनेंट्स कनेक्ट था, तो जिससे साइज बहुत ही बड़ा हो जाता था. छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ जाड़ के क्या होता था, सीपीयू बना जाता था, जिसको हम बोलते थे प्रोसेसर ही बोलते थे. वो भी क्या था, प्रोसेसर ही था, लेकिन वो डिस्क्रीट था. वो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को जोड़ के प्रोसेसर बनाया जाता था, अलग अलग होता था, पीस पीस होता था, छोटे छोटे पीस, बड़े बड़े पीस, सारे को जोड़ जोड़ के क्या करते थे, सीपीयू बनाते थे हम, उसको हम बोलते थे प्रोसेसर. लेकिन उसमें डिमेरिट क्या था कि साइज बहुत बड़ा होता था, बहुत ही बड़ा साइज होता था. आज का जो बॉक्स है सीपीयू, उसी बड़ा होता था साइज. साथ में उसका मेजर ड्रॉबैक क्या था कि स्पीड बहुत ही स्लो होता था, बहुत स्लो डिवाइस था. तो ये तो प्रॉब्लम है भाई. अब टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया, डिमांड बढ़ता गया. तो 1970 में कंसेप्ट आया माइक्रो. व्हाट इज दैट माइक्रो? माइक्रो नथिंग बट ऑल कंपोनेंट, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को लाया गया कहां पर, एक सिलिकॉन चिप के ऊपर लाया गया. दैट चिप इज कॉल्ड सिलिकॉन चिप, जो आपको बहुत ही छोटा टीनी चिप है, बहुत ही छोटा चिप है, इतना पावरफुल है कि उसमें सारे फीचर, जो फीचर्स था डिस्क्रीट मैनर में, वो सारे फीचर्स को आप इनबिल्ट कर सकते हो उस सिलिकॉन चिप में.
जो बहुत ही छोटा है साइज में। तो 1970 में वो सिलिकॉन चिप के ऊपर, सिंगल चिप के ऊपर सारे फीचर्स, सारे कंपोनेंट्स जो था उसको इनबिल्ट किया गया है। सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो। तो माइक्रो क्यों बताया हम? पहले था डिस्क्रीट कंसेप्ट, कंपोनेंट्स को जोड़ जोड़ के सीपीयू बनाते थे। जब 1970 स्टार्ट हुआ टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन चिप का कंसेप्ट आया, उसी चिप पर जितना फीचर्स है वो सारे फीचर्स को, हार्डवेयर फीचर्स, सॉफ्टवेयर फीचर्स, सारे फीचर्स को इनबिल्ट किया गया एक सिंगल चिप में। तब से उसका नाम रखा गया क्या? माइक्रो। नाउ इट बिकेम माइक्रो प्रोसेसर। तो 1970 से स्टार्ट हुआ माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट। समझ में आ गया? इट्स क्लियर? यस सर। यस सर। आप लोग का रिस्पॉन्स थोड़ा, जब मैं पूछता हूँ तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है? तो समझ गए ना? माइक्रो कंसेप्ट समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो क्यों बोलते हैं हम? कब से आया माइक्रो कंसेप्ट? 1970 में आया, और एक सिलिकॉन चिप के ऊपर सारे फीचर्स को इनबिल्ट किया गया। छोटे चिप, साइज में बहुत ही छोटा और बहुत ही फास्टर, 100 टाइम्स फास्टर देन द डिस्क्रीट प्रोसेसर। जो 60 में था बहुत बड़ा साइज में और उसका स्पीड बहुत ही स्लो था, उसको हमने कन्वर्ट किया 1970 में, किसमें? छोटा चिप मिलाया सिलिकॉन चिप के कारण से, और उसका स्पीड 100 टाइम्स बढ़ गया। सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो। So after that it became microprocessor. ठीक है, समझ गए? It's clear now? यस सर। Right. अब मैं इसका एक डेफिनेशन आपको जिसमें सब कुछ इंक्लूड करता है। ये देखिए, डेफिनेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, हाउ यू डिफाइन? Definition of microprocessor tells that a microprocessor is an integrated circuit, IC. माइक्रोप्रोसेसर क्या है? IC है, एक चिप भी बोलते हैं इसको हम। सिलिकॉन चिप बोला ना हमने, दैट इज व्हाट? IC, which incorporates core functions of a computer's central processing unit. जो क्या इनकॉर्पोरेट करता है? जितने फंक्शंस होता है सीपीयू का। सीपीयू का फंक्शन हम बाद में देखेंगे क्या क्या फंक्शन होता है। मेनली क्या होता है कि इट एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट्स आउटपुट। तो माइक्रोप्रोसेसर में मेनली क्या समझता है कि बाइनरी नंबर, आज हमें पता ही है कि बाइनरी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? जो भी हम प्रोग्राम करेंगे वो प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है, कन्वर्ट करता है बाइनरी में, 0 एंड 1 में, और प्रोसेस करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और फाइनली हमें दूसरे नंबर